Good evening, everyone. We are on to the last section of your chemistry syllabus. We have already completed organic chemistry, physical chemistry, and today we are going to start with inorganic chemistry. In inorganic chemistry, we are going to start with the first chapter, that is D and F block elements. आपके एनसीईआरटी सीक्वेंस में दिस इज द फोर्थ चैप्टर, द डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का. आई डोंट नो वेदर टू कॉल यू लकी और अनलकी दैट पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपने पढ़ा ही नहीं है, 11th में भी नहीं पढ़ा होगा और 12th में भी नहीं है. दैट वाज डबल ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसका ऑलमोस्ट डबल था. जस्ट कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ योर न्यू एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड द ओल्ड एनसीईआरटी पार्ट 1, यू विल गेट द आइडिया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये चैप्टर क्या था. खैर, हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. एक बार फिर से मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, that what is the purpose of studying D and F block elements? Yes, not gaining 9 marks, it is of 7 marks. The weightage of this chapter is of 7 marks. 7 marks for D and F block elements and 7 marks for coordination compounds. तो 7 और 7 मिला के टोटल 14 marks weightage is of inorganic chemistry. ठीक है. और इसके अलावा और क्या पर्पस हो सकता है? D and F block elements में you are going to talk about the most precious metals. Gold, silver, platinum, they all belong to D block elements. In fact, you will also be talking about commercially important elements like iron, industrially important बोलो, iron, zinc, copper, aluminium. डी ब्लॉक नहीं है, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में आता है. ठीक है. क्रोमियम है ना, कैडमियम, दीज ऑल metals will be discussed here in D and F block elements. We are not going to discuss these metals individually, but just to make you aware that these elements have been part of your life. You know the importance of gold, silver, platinum. You know the importance of iron, copper, zinc. एंड इन मेटल्स को जिनको आप बचपन से ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 7th 8th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, इनके नाम से आप अवेयर हो, वो एलिमेंट एक्चुअली डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग करता है. दोज मेटल्स बिलोंग टू डीएनएफ ब्लॉक. अच्छा, ये जो हम कहते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक, इसका मीनिंग पता है? व्हाई डू वी कॉल देम, व्हाई वी हैव गिवन दिस स्पेसिफिक नेम्स? एस good. If the last electron while writing electron configuration gets filled in s orbital, it is s block element. If the last electron are filled in p orbital, it is p block element. Same way, if the last electrons are filled in d orbital, it is d block element. और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग f ऑर्बिटल में हो रही हो, then it is called f block elements. So in the periodic table, this is the part of periodic table here, not a part actually, this is the complete periodic table here. इस पूरे periodic table में आप देख रहे हो group 1 and 2, this belong to s block. ये किस में आता है? s ब्लॉक एलिमेंट्स में. यहाँ ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आता है p ब्लॉक में. ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आता है इन द d ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड हियर ये लुटेशियम और लॉरेंशियम नहीं, ये आपका पीरियोडिक टेबल पुराना वाला है, ये पूरा कंप्लीट 118 एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं. दिस इज द ओल्ड वन एक्चुअली. लेकिन यहाँ पे एक्चुअली पहले लेंथनम से स्टार्ट होता है
तो लैंथनम को फॉलो करते हुए और एक्टिनियम को फॉलो करते हुए 14 एलिमेंट्स नीचे अलग लिखे जाते हैं जो कि बिलोंग करते हैं ग्रुप 3 को. सो दीज एलिमेंट्स हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन f ऑर्बिटल और इनको कहते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स. So as I said, D block elements in the periodic table it ranges from group 3 to group 12. कहां से शुरू होता है? ग्रुप 3 से और कहां तक है? ग्रुप 12 तक. Why do we call it D block? Because the electrons are progressively filled into the d orbital. इस पूरे रो में जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, like if I talk about the फर्स्ट रो, अगर मैं इसकी बात करूं, स्कैंडियम, ट्रिटिनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, then you will find that progressively the electrons are filled in d orbital. This is having one electron filled in d orbital, then two electrons, then three electrons. This chromium is having 5 electrons filled in the d orbital, then manganese again 5 electrons, and so on. You know how to write electronic configuration. बस यहां समझना है कि इस पूरे रो में, इस पूरे पीरियड में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोग्रेसिवली फिल्ड इनटू द d orbital. That is why we call them d block elements. Same way f block elements क्या होगा? The electrons are progressively filled into the f orbital. इलेक्ट्रॉन की फिलिंग प्रोग्रेसिवली अगर f ऑर्बिटल में हो रही हो, then it is called f block elements. There are 3 series of d block elements here which are called transition series. This is first transition series, this is second transition series, and this one is third transition series. Same way ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला अभी आपको इनकम्प्लीट दिख रहा है. आप कहीं भी अपने बुक में या आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है उसमें देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लेटेस्ट दिया होगा उसमें आपको ये कंप्लीट यहां तक फील्ड मिलेगा, 118 एलिमेंट्स, और उन सभी 118 एलिमेंट्स के ऑफिशियल सिंबल्स भी दिखेंगे आपको. ठीक है, दिस इज द वेरी ओल्ड वन. So there are 3 series of transition metals, 3D series, 4D series, 5D series. और जैसे 3D सीरीज है तो इट इज स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज जो है वो इट्रियम टू कैडमियम तक है, और 5D सीरीज इज फ्रॉम लैंथनम टू मर्क्यूरी, सीरियम टू लुटेशियम जो है वो F ब्लॉक में आता है. The fourth 6D series begins with actinium. यहाँ लिखा है कि it is still incomplete, but it is no longer incomplete, it is also complete now. The entire 118 elements are there in the modern periodic table. प्रैक्टिकल कॉपी, अभी आप लोग सभी प्रैक्टिकल कॉपी जरूर लिख रहे होंगे, तो आप देखिएगा उसमें केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल कॉपी होगी उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ होगा. There you will be able to see all 118 elements. So even 6D series is also complete now. So there are 4 transition series. The first series is having electrons filled in 3D. The second series is having electrons progressively filled in 4D. The third is having electrons progressively filled in 5D. And the last one, fourth one, is having electrons progressively filled in 6D. 2 series of inner transition elements are written separately at the bottom of the periodic table. है ना, उनमें एलिमेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए सेपरेटली उसे नीचे लिखा गया है. They have 14 elements in it, जिसमें the first one is having electrons progressively filled in 4f orbital. उनको हम lengthenoid series या lengthenide series भी कहते हैं. lengthenoid और lengthenide, यहां पे मैं लिखता हूं lengthenoid भी कहा जाता है, या फिर इसको आप lengthenides भी कह सकते हो. Both the names are used. This is used when the electrons are progressively filled into the 4f orbital. और क्यों ये नाम दिया गया? Why they are called lanthanoids or lanthanides?
because they come after lanthanum. As they are following lanthanum in the periodic table, तो lanthanum के बाद आने वाले elements को नाम दिया गया lanthanoids. इसी तरह when the electrons are progressively filled into the 5f orbitals, those elements are named actinoids और actinides. क्या नाम दिया जाता है? बता रहा हूं, एक्टिनॉइड्स और इनको एक्टिनाइड्स भी कहा जाता है. सो एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइड्स, व्हाई दिस नेम हैज बीन गिवन? बिकॉज इन द पीरियोडिक टेबल दीज 14 एलिमेंट्स जस्ट फॉलोज एक्टिनियम. एक्टिनियम के बाद आ रहा है, दैट इज व्हाई एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइड्स. अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है. पहले आप ट्रांजिशन समझोगे तभी इनर ट्रांजिशन समझोगे. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रांजिशन. ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द नेम वाज गिवन बिकॉज द प्रॉपर्टीज आर ट्रांजिशन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यहां ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, they had the property transition between S block and P block. Transition का मतलब हुआ that they had the properties in between these two extremities. मतलब S और P block को ना representative elements कहा जाता है. S और P block elements क्या कहा जाता है? Representative element. और S block जो है they have a complete metallic character. P block elements they have non metallic characters mostly. जैसे जैसे downward जाते हो they have metallic character also, और उसमें metalloids भी मिलते हैं. लेकिन इनके बीच जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो S और P block के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के इन बिटवीन लाई करती है. द प्रॉपर्टीज ऑफ D block elements lies in between the properties of S block and P block. That means the properties are transition between S block and P block. So that is why the name transition element was given. But at present, transition element has a different definition. अब जो है transition element का definition different है. नाम transition उसी से उठ के आया because the properties were ट्रांजिशन बिटवीन S एंड P, क्योंकि प्रॉपर्टी S और P ब्लॉक एलिमेंट के ट्रांजिशन में थी इसीलिए नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पड़ा. लेकिन अब ट्रांजिशन एलिमेंट की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. इसी तरह इसको इनर ट्रांजिशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर भी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, जैसे यहाँ पे आपका ये जो एलिमेंट्स दिया हुआ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो एलिमेंट दिया हुआ है, द सिंबल यूज्ड हियर इज रॉन्ग, है ना. ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गूगल मत यूज किया करो, है ना. दिस इमेज आल्सो हैज बीन टेकन फ्रॉम गूगल. उस वक्त उतना टाइम नहीं था, बट दिस सिंबल इज इनकरेक्ट हियर. हाँ, ये नहीं होगा एडिट. यहां पे आता है लैंथनम और यहां पे आता है एक्टिनियम, ठीक है. और लैंथनम के बाद फिर यहां सीरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है. चलेगा उतना, लाइन का क्या करना. गेटिंग इट? सो ये इसमें ये था, इसलिए गूगल जो है ब्लाइंडली यूज मत किया करो. जिस वक्त मैंने ये डाउनलोड किया आई डिडंट हैड एनफ टाइम टू जस्ट गो थ्रू इट, लेकिन अभी आपको बता दिया. इसलिए पीरियोडिक टेबल यू विल बी लुकिंग इन योर एनसीईआरटी और इन योर
प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है। तो इनर ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, दे आर लाइंग विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज वाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कहेंगे सिंपली दैट एज दीज एलिमेंट्स they are lying within or inside the transition elements, that is why we call them inner transition elements. डिफरेंस बताता हूं मैं क्या हुआ, डिफरेंसेस हैं आगे और काफी सारे डिफरेंसेस हैं, आएंगे एक एक करके। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज दिस, let's see the position of these transition elements in the periodic table as well. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना that we have a appropriate definition for transition element, वो भी हम देखेंगे। तो आपको पता है that D and F block elements, especially first I talk about D block elements. So D block elements are sandwiched between F and P block elements in the periodic table. पीरियोडिक टेबल में S और P के बीच में ये सैंडविच बना हुआ मिलता है, इट इज फ्लंज्ड बिटवीन S and P block element in the periodic table। एंड ये भी बता चुका हूं आपको that the last electron while writing their electronic configuration gets filled into the d orbital. For the general electronic configuration of d block element is, the general electronic configuration of d block element is this: n minus 1d 1 to 10, ns 1 to 2. That means the penultimate d orbital, d orbital जो है ना, आप देखिए ये अगर n है तो दिस इज n minus 1, इसका मतलब ये हुआ कि d ऑर्बिटल इसके एक पहले वाले शेल का फिल हो रहा है, आउटर शेल के पहले वाले शेल का d ऑर्बिटल फिल हो रहा है, इसको नाम दिया जाता है पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल, व्हाट वी कॉल इट पेनल्टीमेट, व्हिच इज लाइंग विद इन, है ना। सो इट इज फिल्ड प्रोग्रेसिवली, 1 से लेकर 10 तक प्रोग्रेसिवली फिल्ड होगा। आपको पता है d ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, तो इट विल बी फिल्ड 1 by 1 starting from 1 till 10, and ns 1 और 2। एक्सेप्शनल केसेस जो हैं हाफ स्टेबिलिटी और कंप्लीट फुल, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पड़ा हुआ है, तो उस बेसिस पे जो केसेस आएंगे वो मैं बताऊंगा। Half and completely filled sets of orbitals are relatively more stable. Do you know why the half filled and completely filled orbitals are more stable? d ऑर्बिटल में हाफ फिलिंग और कंप्लीट फिलिंग केसेस में वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? इसके दो रीजन होते हैं, वन इज बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एंड द सेकेंड इज बिकॉज ऑफ हायर एक्सचेंज एनर्जी, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाई द हाफ फिल्ड एंड द कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ हायर सिमेट्री एंड हायर exchange energy. In the half filled and completely filled state, it has higher symmetry and higher exchange energy. ठीक है, आपको ये भी पता है कि क्रोमियम और कॉपर के केस में, क्रोमियम एंड कॉपर के केस में व्हाट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यू राइट, जैसे क्रोमियम के केस में इन प्लेस ऑफ 4s2 3d4 4s2 वी राइट 3d5 4s1, और कॉपर के केस में इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3d9 4s2 वी राइट 3d10 4s1, है ना, याद आ रहा है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मोटा लिख रहा है,
क्रोमियम का वी राइट 3d5 4s1 एंड कॉपर का वी राइट 3d10 4s1. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस, है ना. चलिए अब देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स which have partly or incompletely filled d orbital in their ground state or in their most common oxidation state. ऐसे एलिमेंट जिनके ग्राउंड स्टेट में या जिनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ कि जो वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो. ग्राउंड स्टेट मीन्स द लोएस्ट एनर्जी स्टेट. ग्राउंड स्टेट मीन्स जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप एलिमेंट के लिखते हो वो. और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ कि एट द टाइम ऑफ रिएक्टिंग व्हेन इट लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन, तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ. राइट. एक्साइटेड स्टेट मतलब इन दोनों के बीच में आता है. एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर, है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा होगा. और एक बार हाइब्रिडाइजेशन में फिर से पढ़ाऊंगा वो एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, है ना. नो, कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट. उसका भी रीजन मैं बताऊंगा क्यों. ठीक है, अभी पहले ये ध्यान दीजिए दैट कंडीशन क्या है. इट शुड हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके किसी भी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इट शुड बी हैविंग द इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल. ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ना प्रथम, वेरी गुड क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल. ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा जाता है. जस्टिफाई दैट कॉपर इज, ऑल्दो कॉपर हैज एन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, आप लिखोगे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 3d10 4s1, yet it is considered a transition element. क्यों, उसका रीजन देखिए. तो कॉपर का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2. कॉपर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2. तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट फ्रॉम 4s एंड 1 विल बी लॉस्ट फ्रॉम 3d. तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या रह जाएगा, 3d9. हुआ ना इनकम्प्लीटली फिल्ड, है ना. that is why this is considered as transition element. कॉपर का the most common oxidation state of copper is +2. it is most common oxidation state of copper. Why? Because in most of the compound of copper you will see it in +2 oxidation state, and in the +2 oxidation state it has electron configuration 3d9. How? So +2 oxidation state का मतलब है that copper has lost 2 electrons. How it will be losing 2 electrons? One from 4s and the other from 3d. So 4s में only 1 electron was there, it became 4s0. 3d में 10 electrons were there, 1 lost, what it became, 3d9. So that is why copper is considered transition element, as it is having 3d9 configuration or incompletely filled d orbital in its +2 oxidation state. प्रथम आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जस्टिफाई दैट कॉपर in spite of having electron configuration 3d10 4s1 is a transition element, तो आप लिखोगे because in the most common oxidation state of copper, that is +2, electron configuration is 3d9, that is it has incompletely filled d orbital. ठीक है, तो अब पता चल गया as per the modern concept of transition element, how you will define transition element. Elements which have incompletely filled d orbital in its ground state or in its most common oxidation state.
is called transition element. Zinc, cadmium and mercury. Zinc, cadmium and mercury are not transition element. Why they are not transition element? Let's see. So in case of zinc, I like yellow color on black. In case of zinc, the electron configuration is argon 3d10 4s2, right? So Zn2 plus, which is the common oxidation state of zinc. Ground state में तो देख ही रहे हो. Ground state में you can see, you can observe here very clearly that d orbital is completely filled. As well, in its most common oxidation state, that is +2, the electron configuration is argon 3d10 4s0. So जिंक के मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आप देख रहे हो कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है. ग्राउंड स्टेट में भी एज वेल एज इन द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट टू. दैट इज व्हाई जिंक, even cadmium and mercury, they are not considered transition element. प्लीज ये क्वेश्चन लिख लेना, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन होगा अकाउंट फॉर द फॉलोइंग या गिव रीजन करके आएगा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. हाँ, और इसमें क्वेश्चन आएगा जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी are not considered transition elements. Zinc, cadmium and mercury are not considered transition elements. Why they are not considered transition elements? So you can see in their ground state as well as in the most common oxidation state, both have completely filled d orbital. So as d orbital is completely filled, it is not transition element. But इसके बावजूद, क्योंकि ये d orbital में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, क्योंकि ये d ब्लॉक एलिमेंट के एंड में ही आ रहा है, तो इसकी केमिस्ट्री भी हम d ब्लॉक एलिमेंट्स में ही पढ़ेंगे. We will be studying its chemistry in the d block element only. ठीक है? रहने दो, ठीक. चलो, okay, now let's come back on to this physical properties of transition elements. So we will start talking about the physical properties now. अभी तक जो हमने पार्ट कवर किया है, ये पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट था, और इस इंट्रोडक्शन के पार्ट से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए. प्लीज आप जरा सा ना क्वेश्चन भी कहीं पेंसिल से कहीं से किसी भी फॉर्म में आप जरा एनसीईआरटी में हाईलाइट करके लिखते रहिएगा, ठीक है. एक क्वेश्चन बताया that in spite of having electron configuration 3d10 4s1, copper is not, या सिर्फ 3d10 लिखोगे तो भी चलेगा, 3d10 होने के बावजूद copper is not, copper is a transition element. रीजन क्या है? Because in the most common oxidation state of copper, its electron configuration is 3d9, incompletely filled d orbital. दूसरा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, zinc, cadmium and mercury are not considered transition elements because in both ground state as well as completely filled, ground state as well as most common oxidation state, it has completely filled d orbital. That is why this is non-transition elements. Okay, can you just pause it? I am getting a call. Okay, let's start with the physical properties. Till now, whatever part we have covered, that was introduction. Now from here we are starting with physical properties.
So in physical properties, we will first be talking about melting and boiling point of the transition metals. Transition metals generally have a high melting and boiling point. इनकी melting point और boiling point generally high होती है. लेकिन आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है with the exception of zinc, cadmium and mercury. जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आई मीन बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी एंड द वोलेटिलिटी इज लो. ऑब्वियस है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई हुआ तो इट हैज लेस टेंडेंसी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, दैट मींस लो वोलेटिलिटी. लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होना चाहिए आपके माइंड में दैट व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है या नहीं? नो. डी ब्लॉक एलिमेंट होने के बावजूद आपको इसका एक और एप्रोप्रिएट रीजन पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड. बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड. तो आप कह सकते हो कि मेटालिक बॉन्ड तो सभी मेटल में होता है, नहीं? सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम इन सब में भी होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम में भी होगा. तो फिर इसके मेटालिक बॉन्ड में क्या खास है? पहले ये बताओ कि मेटालिक बॉन्ड पता है क्या होता है? मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड. एक इलेक्ट्रॉन का दरिया है और कर्नल को डूबते जाना है. ये मेटालिक बॉन्ड है क्या? चलो मैं भी शायरी कर लेता हूँ. ये मेटालिक बॉन्ड है क्या? बस इतना समझ लीजिए. एक इलेक्ट्रॉन का दरिया है और कर्नल को डूबते जाना है. कैसे डूबते जाना है? अरे चलेगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कैमरा बाद में देख लूंगा. लेट्स सी. सी, कंसिडर दिस एज अ मेटल surface, right? This metal surface will be having lot many metal atoms onto it, right? अभी थोड़े से metal atoms मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, ठीक है? अब क्या होगा कि इन metal atoms में जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल्स में होते हैं ना, the outermost electrons और the valence shell electrons, उन इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ नाम दिया है. They are called आवारा इलेक्ट्रॉन्स. मैंने नाम दिया है उनको आवारा इलेक्ट्रॉन्स. क्यों आवारा कहा हूं वो रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा. अगर मेरा यहां से मैं नीचे चला जाऊं, अंदर चला जाऊं, आप लोग क्या करोगे? आवारा हो जाओगे. जैसे ही मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप पे कम हुआ, यू स्टार्ट बिहेविंग आवारा. वैसे ही बिकॉज these electrons are far away from the nucleus, इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है it is far away from the nucleus, so they can come out of the atom and they can move freely over the surface, right? इसीलिए इनको मैंने आवारा इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है. और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये पूरे सरफेस पे, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे सरफेस पे क्या बनाते हैं? ये पूरे सरफेस पे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन सी. क्या बनाते हैं ये? इलेक्ट्रॉन सी. और जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से बाहर आया तो मेटल एटम पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन सी. दिस इज इलेक्ट्रॉन सी. और ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कर्नल. इनको क्या कहते हैं? कर्नल. मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, वैलेंस शेल में है, वो न्यूक्लियस से काफी दूर है. और न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टेप आउट ऑफ द आउटर मोस्ट शेल एंड विल मूव ओवर द सरफेस ऑफ एटम. ठीक है? बाहर नहीं जा रहे, मतलब किसी दूसरे एटम को लॉस नहीं हुआ अभी. दे आर जस्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द मेटल. इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर द सरफेस.
राइट? सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन सी। क्या बनाता है ये? इलेक्ट्रॉन सी। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स मैंने शो किए हैं इनको कहते हैं कर्नल। आप समझ में आया? इलेक्ट्रॉन सी का चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। कर्नल का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। इन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वी हैव strong force of attraction, that is what we call metallic bond. इसी को मैं कहता हूं metallic bond. अरे ये रहा ना इलेक्ट्रॉन का दरिया, इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन का दरिया। और कर्नल डूबते क्यों जाना है? बिकॉज कर्नल इज इमोबाइल हियर। कर्नल जो है ना मूव नहीं कर सकता है, वो तैर नहीं सकता। कर्नल इज हैवी, एटम इज कंपैरेटिवली हैवी देन इलेक्ट्रॉन्स। तो कर्नल कैसे होंगे? यहाँ पे इमोबाइल होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन द इलेक्ट्रॉन सी। ओके, इसीलिए मैंने कहा था कि मेटालिक बॉन्ड है क्या, बस इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन का दरिया है और कर्नल को डूबते जाना है। ये मेरा खुद का है, नहीं गालिब का मैंने कॉपी नहीं किया है। चलिए, गेटिंग दिस क्लियर? तो अब ये समझिए कि बाकी मेटल्स में, जैसे अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट के मेटल की बात करें तो उनके पास सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन थे इलेक्ट्रॉन सी में कंट्रीब्यूट करने को। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के पास एस के अलावा डी इलेक्ट्रॉन्स आल्सो आर अवेलेबल टू टेक पार्ट इन द मेटालिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन सी के कॉन्स्टिट्यूशन में डी इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं? और वो भी दे हैव लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विद देम। डी इलेक्ट्रॉन्स अच्छे खासे हैं उनके पास। इसीलिए मेटालिक बॉन्ड डी ब्लॉक में कैसा बनेगा? डी ब्लॉक में मेटालिक बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। और अगर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा तो दे विल हैव, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड की वजह से दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। In case of D block elements, in addition to S electrons, D electrons also take part in metallic bonding. How? तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन सी का फॉर्मेशन दिखाया ना, इसमें इस इलेक्ट्रॉन सी में सिर्फ s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसमें d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सी will have large number of electrons in it, है ना? तो ऑब्वियसली जो कर्नल और इलेक्ट्रॉन सी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ट होगा, दैट विल बी ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। लेकिन जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इसमें हमने पढ़ा है कि डी ऑर्बिटल इसके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अगर आप सुखी संपन्न हो तो आप अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दोगे? डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे प्रेजेंट हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के पास। क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहीं जाने देगा? वही उसकी धरोहर है, वही उसका सब कुछ है। It will not allow the d orbital to take part in the electron C formation, right? That is why the d electrons of zinc, cadmium and mercury will not be taking part in, they will not be taking part in electron C formation. Their metallic bond will be comparatively weak. उनका मेटालिक बॉन्ड दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में वीक होगा, और मेटालिक बॉन्ड वीक होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। their melting point is less. In fact, मर्क्यूरी को देख लो, मर्क्यूरी की मेल्टिंग पॉइंट इतनी लो है, मर्क्यूरी का मेटालिक बॉन्ड इतना कमजोर है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी लो है कि रूम टेम्परेचर भी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, पता है ना? हाँ, यस, हाई वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी ज्यादा होगा उसका। वोलेटिलिटी का मतलब हुआ एबिलिटी टू एंटर इनटू वेपर स्टेट। हाँ,
वो अलग रीजन से वो एक्सपैंड होता है। मर्क्यूरी जो है उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड होते जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जिस रीजन से हम मर्क्यूरी को थर्मोमीटर्स में भी यूज करते हैं, है ना। तो दूसरे मेटल के कंपेयर, दूसरे ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में कह रहे हैं कि वोलेटिलिटी हाई होगी। इट डजंट मीन कि उसकी वोलेटिलिटी बहुत हाई है, वो दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन मेटल्स के कंपैरिजन में कहा जा रहा है। ओके, चलिए तो ये पार्ट क्लियर है। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन आता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को आप साथ में लिखते रहो। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, दैट व्हाई द ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। रीजन इज ट्रांजिशन मेटल्स में द डी इलेक्ट्रॉन्स आल्सो टेक पार्ट इन और मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन एडिशन टू एस इलेक्ट्रॉन्स। s इलेक्ट्रॉन के अलावा d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आल्सो टेक पार्ट इन इलेक्ट्रॉन c फॉर्मेशन और मेटालिक बॉन्डिंग, due to which they have a strong metallic bond, and as a result of this melting point and boiling point are high. Clear? चलिए, high melting and boiling point is due to the strong metallic bond। देखो ये आ गया ना, but presence of नहीं, ये प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल कुछ और है, मैं बताता हूं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए मैं यही बता रहा था आपको। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d in addition to ns electrons in interatomic metallic bonding cause the metallic bond to be strong। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको आंसर जो फ्रेम करके बताया ना, क्या कहोगे, इन ट्रांजिशन मेटल्स n-1d electron take part in metallic bonding in addition to ns electrons, so their metallic bonds are very strong, and that is why the melting point and boiling point are high. Because of stronger interatomic bonding, transition elements have high melting and boiling point। ये डिस्कस कर चुके हैं, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। Now this is the graph showing melting point versus atomic number। This is the graph of melting point versus atomic number। इसमें क्या चीजें आपको ध्यान देनी है वो मैं यहाँ पे मार्क करता हूं इससे। सॉरी, तो आप यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हो दैट द मेल्टिंग पॉइंट, ये हम ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन सीरीज में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 3D सीरीज की को लेके एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया गया है, दैट एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज व्हाट ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। ये तो सही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, हमने समझ लिया, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने में ये मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, what change in the melting point and boiling point is observed, how do it changes along the series, वो डिस्कस करना है। तो देखिए कैसे चेंज हो रहा है, इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है। as we move left to right in the series you can see that first the melting point and boiling point are increasing। melting point स्पेसिफिक मैं मेल्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, इट रिचेस टू सम मैक्सिमम वैल्यू, किसी एक मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है एंड देन इट इज डिक्रीजिंग। व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है स्टार्ट होगी। स्कैंडियम इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल एंड देन आफ्टर टाइटेनियम इज हैविंग 2, वेनेडियम इज 3, वेनेडियम हैविंग 3, क्रोमियम हैविंग 5 एंड सो ऑन। लेकिन आप आगे ये देखिए कि यहाँ पे मैंगनीज
और ये टेक्टिनियम, इन दोनों का ना आप देखो ट्रेंड में बहुत एबनॉर्मल और एनोमलस बिहेवियर शो किया गया है ना। इट इज नॉट एज पर द रेगुलर ट्रेंड। आप इसमें देखिए, इसमें तो इंक्रीज हुआ और फिर यहां से फाइनली डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंगनीज और टेक्टिनियम मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D सीरीज में मैंगनीज की एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट मिल रही है और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में टेक्टिनियम का एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है। ऐसा क्यों? ड्यू टू दिस, as they have half filled d orbital, so in the half filled state the d electrons will be less participating in interatomic metallic bonding। हाफ फिल्ड होने की वजह से d इलेक्ट्रॉन्स इंटर मेटालिक बॉन्डिंग में लेस पार्टिसिपेट करेंगे, और जब वो इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग में लेस पार्टिसिपेशन करेंगे तो मेटालिक बॉन्ड इनकी कंपैरेटिवली वीक हो जाएगी, और मेटालिक बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होने की वजह से आप देख रहे हो कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो है या नहीं। दूसरा कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होता जा रहा है? बिकॉज इनिशियली द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग d ऑर्बिटल सिंगली, राइट, दे हैव फ्री स्पिन्स, बट आफ्टर दिस you can see इसके बाद क्या होगा, now the electrons start getting paired up, है ना, 5 के बाद 6 7 ऐसे ना इलेक्ट्रॉन्स फिर धीरे धीरे पेयर्ड होते जाएंगे। तो when the electrons start getting paired up, those paired electron are difficult to take part in the metallic bonding। जो paired electrons होंगे they will not be easily taking part into the metallic bond formation, as a result of which you can see पहले ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जहां फिल्ड हो रहा था मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द सीरीज से, ऑलमोस्ट फ्रॉम मिडल ऑफ द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग। और मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज होती जा रही है? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है सनी, श्योर? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स राइज टू मैक्सिमम, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सीरीज जाते तक ये क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। D5 एक्सेप्ट फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ मैंगनीज एंड टेक्टिनियम, इनके एनोमलस बिहेवियर की वजह से, इनमें एनोमलस बिहेवियर है, मतलब इनमें मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था लेकिन मैक्सिमम ना होके इनका मेल्टिंग पॉइंट आपको लीस्ट मिनिमम दिख रहा है वहां। And after that it fall regularly as atomic number increases, है ना, उसके बाद जो है क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली फॉल होता है। So the strength of interatomic bonds and transition element is roughly related to the number of half-filled d orbitals. Strength of metallic bonding is roughly related, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, वही चीज है। It is roughly related with number of half-filled d orbital or orbital। जैसे स्कैंडियम में there is one half-filled d orbital। क्यों half-filled बोला? क्योंकि उस d orbital की मैक्सिमम एबिलिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की थी और मैं d1 लिख रहा हूं, तो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें half-filled ही है वो। सेम वे स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में there are 2 electrons but as per the Hund's rule they are occupying the d orbital singly, तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। उसके बाद वेनेडियम में 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्रोमियम में 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ना। तो इन केसेस में वी विल सी दैट एज द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल इज इंक्रीजिंग, as the number of half filled d orbital is increasing, strength of metallic bond is increasing, and that is why melting point is also increasing। exception किसका होगा? मैंगनीज और टेक्टिनियम का। इन द बिगनिंग द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, देखिए वही चीज कह रहा है, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल का नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इंक्रीजिंग the strength of metallic bond, right?
causing an increase in strength of interparticle bonds or interatomic metallic bond. But thereafter pairing of electrons in the d orbital take place. इलेक्ट्रॉन फिर क्या होंगे, पेयर्ड होने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से क्या होगा, the strength of metallic bond will decrease now. So metallic bond की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, राइट? और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में सबसे लीस्ट देखने को मिलेगा. As such, zinc, cadmium and mercury are not transition elements. चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. पहले मुझे ये बताओ, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एटोमाइजेशन? एटोमाइजेशन समझते हो? एटोमाइजेशन का मतलब हुआ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग 1 mole of a molecule into constituent atoms. जैसे 1 mole हाइड्रोजन को अगर आप इसके constituent atom में ब्रेक कर दो, the energy required for this or the enthalpy change in this is called enthalpy of atomization. इसको क्या कहेंगे हम? enthalpy of atomization. So इसमें आपको ये याद रखना है that greater the number of valence electron, stronger the interatomic attraction. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, मेटालिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होगी. Hence, stronger bonding between atoms result in higher enthalpy of atomization. तो enthalpy of atomization भी किस पे डिपेंड करेगा? Enthalpy of atomization also depends on metallic bond only. Metallic bond strong, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई. मेटालिक बॉन्ड वीक, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी वीक. देखो यहां पे आपको ये जो पॉइंट 2 दिख रहा है, ये जो ग्राफ है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ. और आप ध्यान से देखिए कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा. इस ग्राफ को ध्यान से देख लो, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ. और अब ये ग्राफ देखो, दिख रहा है कोई डिफरेंस? बिकॉज बोथ द प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बोथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है ना? तो यहां पे भी आपको वही ट्रेंड मिलेगा. Metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of first series. ये भी हमें साफ दिख रहा है. इसमें देखो आपको 3 अलग अलग कलर दिख रहे होंगे, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. ग्रीन, ब्लू एंड रेड दिख रहा है. ग्रीन वाला इज फर्स्ट सीरीज, ब्लू वाला इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और रेड वाला इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. तो ये कह रहा है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ग्रेटर देन द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. सही बात है ना? क्यों ज्यादा होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग. फाइन, लेकिन क्यों मेटालिक बॉन्ड कैसे, क्यों ज्यादा होगा उनका सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में? नहीं, तो डी इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन तो वैसा ही रहेगा. कर्नल भी तो हेवी हो रहा है ना, कर्नल भी तो हेवी होता जा रहा है ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रांग होगा ना. यस. चलिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऐसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया, यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल बॉन्ड आर कंप्लीटली ब्रोकन टू ऑब्टेन एटम्स इन द गैसियस फेज. 1 मोल सब्सटेंस जब कंप्लीटली उसके कंस्टिट्यूएंट एटम इन गैसियस फेज में ब्रेक हो रहा हो, there the enthalpy change is known as enthalpy of atomization.
जैसे एग्जांपल दिया है कि इफ यू ब्रेक 1 मोल ऑफ मीथेन इनटू कंस्टिट्यूएंट एटम इन गैसियस स्टेट, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। प्लीज मेरी बात सुन लेना एक बार, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वैल्यूज आएंगे, बहुत सारे, इन वैल्यूज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ मेमोराइजिंग एनी वैल्यू, ठीक है। For diatomic molecules, enthalpy of atomization is equal to enthalpy of bond dissociation. ये याद रखिएगा, diatomic molecules के लिए enthalpy of atomization and bond dissociation enthalpy दोनों सेम होती है। अब bond dissociation enthalpy का क्या मतलब होगा? 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, that is bond dissociation enthalpy। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन कब बोलते हैं? When 1 mole of bond is broken into a homoatomic molecule. होमोएटॉमिक का मतलब हुआ, होमोएटॉमिक का मतलब हुआ कि दोनों एटम सिमिलर एलिमेंट के होने चाहिए, एक ही एलिमेंट के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। When the covalent bond is there between the same atoms, it is called homoatomic molecule. So when 1 mole bond is broken, diatomic molecules में when 1 mole of bond is broken and constituent gaseous atoms are formed, the enthalpy of atomization is same as bond dissociation enthalpy. उसकी भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखना जो हम वोलेटिलिटी की, हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आप देखो, हाँ, जितना मतलब H2 का 2 हाइड्रोजन तोड़ने में जितना एनर्जी लगा उतना वही होगा, यस वही होगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों सेम होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वर्ड ही यूज होता है या बॉन्ड एंथैल्पी यूज होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं बोलते वहां पे, इधर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो मतलब दोनों सेम ही, ओनली फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और सीओ में ऐसा नहीं होगा, नहीं सीओ में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये बताया है दैट फ्रॉम दिस कन्वर्जन सॉलिड टू वेपर व्हाट ऑल एंथैल्पी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। सो फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इन्वॉल्व्ड टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड स्टेट, एंड आफ्टर दैट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर। बट अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा रहा हो तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इन्वॉल्व होता है। ये डेटा, ये चीजें आप एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स 11th में, उसमें पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। चलिए, now we are going to discuss atomic and ionic radii, but we will take a small pause here, छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक, and then we will continue with discussion of this. Atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज गवर्न्ड बाय टू फैक्टर्स, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो एटॉमिक और आयनिक रेडिया किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिक और आयनिक रेडिया डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सनी ध्यान नहीं दे रहे हो आप, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स and the mutual repulsion of electrons present in the size determining outer shell। तो देखिए अभी कुछ नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैं आपको इसके बेसिक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, जो बच्चे 11th में ही पढ़ लेते हैं, 11th में पढ़ा हुआ चीज है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को तकलीफ है 11th में अभी याद नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा, इस चैप्टर के एनसीईआरटी में यू वॉन्ट बी एबल टू सी। एनसीईआरटी में आपको जो दिखेगा वहां से फिर बता भी दूंगा कि ये अब एनसीईआरटी का पार्ट है, लेकिन ये दो फैक्टर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ गया
तो फिर आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो फैक्टर से आप दो फैक्टर अफेक्ट करती है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को। पहला फैक्टर क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये तो आपका ग्राफ इनका ही है, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपका जो ग्रीन वाला लाइन है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, और ब्लू वाला सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है, और रेड वाला थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है। तो इसमें आप ये नोटिस कर पाओगे कि द एटॉमिक साइज ऑफ, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है ये, तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि एटॉमिक रेडियस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, the second and third series transition element are greater than the corresponding elements of first transition series। जैसे आप देखो यहाँ पे इट्रियम और लैंथनम का जो साइज है वो स्कैंडियम से बिगर है, atomic radius is bigger, right? But then you will be able to see that the atomic radius of the second and third series, या फिर यू कहो that the atomic radius of 4D and 5D series are nearly the same, है ना। जैसे आप देखो जिरकोनियम और हॉफमेनियम दोनों की एटॉमिक साइज आपको सेम मिलेगी, 160 पिकोमीटर के आसपास होता है जिरकोनियम और हॉफमेनियम का, है ना। एटॉमिक रेडियस इज 160 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट सेम। तो ये ऑलमोस्ट सेम क्यों होता है उसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे, we will be discussing the reason for that as well, but उससे पहले हम ये समझते हैं जो दो फैक्टर मैंने कहा ना, पहला डिपेंड करता है on the attraction of nucleus and electrons और दूसरा repulsion among electrons। तो यहाँ पे वही बताया गया है, what you can see that there is a nucleus shown with a Z plus charge and electrons are filled in the shells, the electrons are attracted towards the nucleus, ये attractive force बता रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सिव फोर्सेस शो किए गए, ठीक है। अब इसमें आपको ये समझना है that when the electrons are filled in the d orbital, the d orbital are poorly shielded। d इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक दूसरे से poorly shielded होते हैं। तो poorly shielded होने की वजह से क्या होता है that the nucleus has a greater न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। देयर इज अ ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन विल बी मोर। व्हेन द अट्रैक्शन विल बी मोर इट विल बी पुलिंग दोज इलेक्ट्रॉन एंड द शेल टुवर्ड इट, द साइज विल डिक्रीज, साइज डिक्रीज हो जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे ये जो डी और ऑर्बिटल आ रहा है, इंटरवेनिंग डी ऑर्बिटल, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड नहीं कर पा रहा, इसकी शील्डिंग पुअर है। तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होगा कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे ज्यादा लगेगा और ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो साइज कैसा हो जाएगा, छोटा। जबकि ये पोटेशियम एटम का केस बताया है, पोटेशियम में आप देखो p ऑर्बिटल है और s है, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल जो है उसकी शील्डिंग d से बेटर होती है, दे आर नोन फॉर बेटर शील्डिंग। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड करेगा। शील्ड करेगा मतलब इसका जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी लेस। देखो Z इफेक्टिव लिखा है ना, इट इज Z मींस द न्यूक्लियर चार्ज माइनस S, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, लेस अट्रैक्शन विल बी देयर, एंड लेस अट्रैक्शन के साथ आप देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी रहेगा, जिसकी वजह से पोटेशियम का साइज बिगर, इसका साइज, ये वाले का साइज, ये कॉपर का है, कॉपर का साइज स्मॉलर। यहां पे भी रिपल्शन होगा लेकिन अट्रैक्शन इज मोर, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा।
ठीक है, तो याद रखिएगा डी और डी ब्लॉक एलिमेंट में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एज you move left to right in the series you will find that the atomic radius decreases. लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना, एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। हाँ, वो उसका रीजन भी बताऊंगा। एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट। व्हाई द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग? द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग बिकॉज shielding of d electrons are poor. As the d electrons cause poor shielding, so there will be greater effective nuclear charge on the outer electrons which will be pulled towards the nucleus and the size will be decreasing. ठीक है, और यहां पे बाहर में क्या हो रहा है कि बाहर में शेल कंप्लीटली मतलब D10 हो जाने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, इसीलिए वो श्रिंक होने की जगह पे थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा, तो वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज विल बी ग्रेटर इनके कंपैरिजन में। ठीक है, रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर व्हेन d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, चलिए इसका काम नहीं है हमें। हाँ चलिए अब हम देखते हैं, ये जो मैंने आपसे कहा ना कि 4D एंड 5D सीरीज, इसमें द एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, जिसमें मैंने आपको जिरकोनियम और हॉफनीनियम का एग्जांपल दिया था। एक बार जरा फिर से मैं इस पे आ जा रहा हूं, इस ग्राफ पे आप देखो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 4D और 5D सीरीज, 4D और 5D सीरीज में देखिए द साइज एटॉमिक रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये ऑलमोस्ट सेम क्यों है उसको समझने के लिए आप यहां देखिए, ये आपका पहला ट्रांजिशन सीरीज है, ये दूसरा और ये तीसरा। आप देखो कि यहां पे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बाद मतलब 4D सीरीज के बाद 5D सीरीज शुरू होते ही पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां फिल होने लगते हैं, F। 4D सीरीज खत्म हुआ, यहां तक, फिर यहां आ जाओ, यहां पे लैंथनम में इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, 5D में, बट 5D 1 के बाद नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी सक्सेसिवली फिल्ड इनटू द F ऑर्बिटल। और F की शील्डिंग जो है ना, F इलेक्ट्रॉन्स कॉज इवन मच पुअर शील्डिंग एज कंपेयर्ड टू D। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि D कॉजेस पुअर शील्डिंग, F जो है ना वो D से भी पुअर शील्डिंग कॉज करता है। तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब F में फिल हो रहा हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना, बिकॉज इट इज कॉजिंग मच मोर पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर शील्डिंग डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अंदर कौन से ऑर्बिटल में हुई है। D में हुआ तो पुअर शील्डिंग होता है, लेकिन F में हुआ तो उससे भी ज्यादा पुअर शील्डिंग रहेगी, है ना। सबसे ज्यादा शील्डिंग S में होगा, S के बाद P में, उससे कम D में, और सबसे लेस शील्डिंग किस में होती है, F में। इसका रीजन है पेनिट्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल। हाँ, पेनिट्रेशन मतलब कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के कितने क्लोजर है। S ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। तो जब वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे तो न्यूक्लियस के कुछ न्यूक्लियर चार्ज का खपत हो जाएगा, they will consume, they will some nuclear charge of the nucleus will be used up, and the effective nuclear charge on electron afterward, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं शील्डिंग। और जब मैं बोलूं इट कॉजेस पुअर शील्डिंग, तो पुअर शील्डिंग का मतलब ये हुआ कि D
ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ऑलरेडी दूर थे, वो एटम के पेरीफेरी के तरफ होता है, तो इट इज नॉट क्लोज टू द न्यूक्लियस, इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो उसे न्यूक्लियस का जो चार्ज कम करना चाहिए था वो चार्ज कम नहीं कर पाया, इनफैक्ट न्यूक्लियस का चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे और ज्यादा ही रह गया, जिसकी वजह से वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, और पुल करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस आफ्टर कंजप्शन ऑफ द शील्डिंग फ्रॉम इट, मतलब न्यूक्लियस इनर इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसका कुछ चार्ज वहां पे यूज अप हो जाएगा, और जो रेस्ट बचा दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या ये भी कह सकते हो कि द न्यूक्लियर चार्ज विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ओके सनी। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे 4d सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन 4d सीरीज में 4d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा था, 5d सीरीज यहाँ स्टार्ट होगी, 5d में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होने लगेंगे, सक्सेसिवली इनटू द 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल में फिल होगा, राइट। और जब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली फिल होगा तो 4f की शील्डिंग इज मच पुअर एज कंपेयर टू d, f orbital cause much poor shading effect compared to d, जिसकी वजह से effective nuclear charge will be greater on the outer electrons। तो हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और f ऑर्बिटल वाले केसेस में ज्यादा होगा, क्योंकि f ऑर्बिटल जो है उसकी वो जो शील्डिंग कॉज करेगा वो शील्डिंग d के शील्डिंग से भी कम होगा। ठीक है, शील्डिंग का मतलब हुआ टू प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, है ना। शील्डिंग, हाँ, मतलब वो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट कर खुद न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। और जब मैं पुअर शील्डिंग कहूं तो पुअर शील्डिंग का मतलब हुआ कि वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड नहीं कर पा रहा, तो न्यूक्लियस का ज्यादा चार्ज कहाँ पड़ेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर शेल पे, और वो उसे अपनी तरफ पुल करेगा। तो अब यहाँ पे सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग f ऑर्बिटल में होने की वजह से क्या होगा, द साइज विल श्रिंक। दिस श्रिंकेज इन द एटॉमिक रेडियस थ्रू आउट this lengthenoid series is called lengthenoid contraction. The filling of 4f before 5d orbitals result in regular decrease in the atomic radius, which is called lengthenoid contraction. The question is very important. बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 1 मार्क में, what is meant by lengthenoid contraction? आंसर क्या होगा, the filling of 4f orbital before 5d results in a regular decrease in atomic radii which is called lengthenoid contraction। और इस regular decrease in atomic radii का रिजल्ट ये होगा कि यहां तक इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद जब वापस से इलेक्ट्रॉन यहां हॉफमेनियम में फिल होगा, मतलब 5d वाले में वापस जब फिल होना स्टार्ट होगा तो यू विल हैव दीज टू साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर। यही रीजन है दैट व्हाई द एटॉमिक साइज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा श्रिंकेज हुआ है ना, देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ओवर हियर, और इसके बाद ही फिर आ रहा है हॉफमेनियम, और उसके बाद ही आ रहा है ये 5d सीरीज वाला, है ना। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा श्रिंकेज हो गया इसकी वजह से, इन 14 एलिमेंट्स की वजह से, दैट इज व्हाई दीज टू सीरीज विल हैव सेम एटॉमिक रेडियस ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, wait, yes, that's all for today। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाए that why do the 3D
why do the 4D and 5D series have same atomic radius? The reason behind this is lengthenoid contraction. और फिर उसको explain कर दोगे that the filling of 4f orbital before 5d orbital cause a regular decrease in the atomic radii throughout lengthenoids, and this is called lengthenoid contraction. Because of this lengthenoid contraction, the atomic radius of 4d and 5d series of corresponding elements are nearly same. ठीक है, अभी तक मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता चुका हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं जिक्र कर रहा हूं ना, दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली बोर्ड में पूछा जा रहा है ना. चलिए, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे.